चलो check the homework sum. Check the homework sum. Homework check करो. Homework was easy, I think. When it's what? Debit balance as per passbook is what? Overdraft or normal? Overdraft. So we are moving from PB to CB with OD. Is that right? पहला वाला homework का 10th arrow. Customer directly deposited in the bank through NEFT. So PB goes up, CB flat, arrow goes downwards. Normally you subtract, here you add. बराबर है? 8,000. Checks deposited into the bank but not credited by the bank. So CB goes up, PB flat, arrow goes upwards. Normally you add, here you subtract. Minus 10,500. Passbook showed a debit entry for bank commission. What is debit entry? कैसा आया कि गया? गया. So PB goes down, CB flat, arrow goes upwards, minus 300. Bill of exchange of 3,500 discounted with bank in December, returned dishonored. So dishonored BR बताया था. Passbook goes down, cash book flat, arrow goes upwards, you subtract. Minus 3,500. As per standing instructions, bank paid telephone bill. So PB down, CB flat, arrow goes upwards, minus 650. A check of 975 deposited in the bank but wrongly recorded as 795 in cash book. So passbook goes up, cash book also goes up but by 795. Arrow goes downwards. So you add 180. You add 180. What's your final answer? 9230. Positive, negative. So it is bank overdraft as per cash book. Any doubts in this? So वो dishonor next month था ना तो Yes. January में Sorry. Discounted with bank. Bill of exchange of 3,500 discounted with bank in December. Return dishonored in Jan. इसके लिए ना actually return dishonored in Jan है ना. इसमें you assume that dishonor cash book को पता चला है January में. Passbook में हो गया December में. समझा? Discounted भले ही Jan दिया है, but assume करना है कि cash book में Jan हुआ है. In passbook it has occurred in December. Discounted BR dishonor का एक ही इफेक्ट है. Passbook goes down, बैंक से कट गया पैसा. Discounted है खाली तो पैसा लेने का इफेक्ट, पर वो तो हो चुका है. डिसऑनर हुआ है. डिसऑनर के लिए एक ही है. Passbook goes down. तो ये जो जैन दिया ना, ये कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू का जैन ऐसा. कैश बुक रिमेन्स फ्लैट. तो सेम है. PB goes down, CB flat है. Okay. Then from the following details find the bank balance as per cash book of Mr. Anurag. Bank balance as per passbook. So is it normal or overdraft? Normal. So we are moving from passbook to cash book with a normal balance. 2 checks of 8,900, 10,700 issued, but only one was presented for payment. So CB goes down, PB
flat, arrow goes downwards, you subtract 10,700. You subtract 10,700. Is that right? Hello? Checks of 16,400 were deposited, only 6,400 were clear. So CB goes up by 16,400, PB goes up by 6,400. Arrow moves upward, so you add 10,000, I think, right? You add 10,000. Cash of 5,500 withdrawn from the bank for personal use, not entered in cash book. Withdrawn मतलब पैसा गया, so PB down, CB flat, arrow goes upwards, so plus 5,500. Is that right? Plus 5,500. Then 350 bank incidental charges debited to Mr. Anurag's account is not recorded in cash book. So PB down, CB flat, arrow goes upwards, so plus 350, plus 350. There was a debit in the passbook of 7,500 in respect of a check dishonored on 30th June. So debit in the passbook when the passbook goes down, cash book flat, arrow goes upwards, plus 7,500. This was second type of dishonor. इसमें क्या हुआ है, पासबुक में क्यों डेबिट दिख रहा है आपको? Why you are finding पासबुक में डेबिट? Remember दो टाइप के डिसऑर्डर मैंने बताए थे, ये पासबुक टू कैश बुक. पासबुक में डेबिट दिखने का मतलब पहले क्या हुआ होगा, पहले चेक आया, पासबुक में डेबिट आने का मतलब क्या है, बरोबर. पासबुक में डेबिट आने का मतलब क्या है, पहले दोनों ऊपर गए, वो नलीफाई हो गए, फिर पासबुक को पता चला तो पासबुक में नीचे चला गया. इज इट क्लियर? द सेकेंड टाइप ऑफ डिसऑर्डर. नॉर्मली अगर बोला जाता है चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑर्डर तो सीबी गोज अप, पीबी फ्लैट, ऐसे अज्यूम करते हैं. यहाँ पे सीबी पीबी दोनों ऊपर गए, फिर पीबी नीचे गया. इसमें भी ऐसे ही करोगे तो भी चलेगा, सीबी और पीबी फ्लैट रखोगे तो भी सेम ही आंसर मिलेगा. सीबी और पीबी फ्लैट तो भी सेम आंसर मिलेगा. So I think this will be added. 7,500 add होगा. Is that right? Interest was credited only in passbook. So PB goes up, CB flat, arrow goes downward. So you subtract minus 425. Is this clear? Hello. Have what's your final answer? 26 to 25 मिला, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक मिला, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. बोला नहीं डाउट है तो होगा क्या, अलाउड मतलब पैसा आया. सो पासबुक गोज अप, कैश बुक फ्लैट. इंटरेस्ट चार्ज दिया ना, चार्ज इंटरेस्ट चार्ज दिया ना, चार्ज, तो फिर पासबुक गोज डाउन. इंटरेस्ट अलाउड मतलब पासबुक गोज अप. ओके, लास्ट पार्ट ऑफ BRS. बाय द वे आई एम कीपिंग टेस्ट दिस संडे. ओके, BRS टेस्ट वी आर कीपिंग दिस संडे. ओके, और बोल क्या रे आगे से त्या सुधी एकदम स्टेट हॉलिडे डिक्लेअर क्या जायचं राईट जा क्या जायचं. बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेप्रिसिएशन. क्या जायचं અને આલિસ 7 દિવસ કોઈ લગાઈ કરે પછી થોડો ચીલ પણ ઓલાનો હનીમૂન છે તારું હનીમૂન. वही लिख रहेगा एंट्री नीचे सब के एंड में नोट सब पूरा स्टेटमेंट खत्म होने के बाद कैश बुक में लिखते थे ना नोट. चेक डिपॉजिटेड
but not collected या check issued पूरा भी लिखा तो भी चलेगा, पूरा लिखा तो भी चलेगा, तो बड़ा हो जाएगा स्टेटमेंट. अदरवाइज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक इश्यूड बट नॉट. चलो ध्यान से, आज मैं डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके बाद थोड़ा हो जाएगा, टाइम मिलेगा तो संडे टेस्ट है BRS प्रिपेयर प्रॉपर्ली. એટલે થઈ ગયું શું થયું? થર્સડે તો થઈ ગયું સર. થર્સડે થઈ ગયું, આજે ચાલુ થયું છે. संडे लिखो, आज इम्पोर्टेंट सब शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, क्योंकि फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे यू विल हैव डेप्रिसिएशन टेस्ट. अगर ये नेक्स्ट संडे रहेगा ना तो बैक टू बैक 2 संडे टेस्ट. नेक्स्ट संडे राजीव सर का टेस्ट है. सर नेक्स्ट बैक टू बैक 2 संडे चलेगा. एक सम नंबर 4 चेस के लिए इम्पोर्टेंट सब का लिस्ट में भेजता हूँ आज लोग. चलो टेक सम नंबर 4. देखो क्या दिया है, क्रेडिट टोटल ऑफ बैंक स्टेटमेंट. व्हाट इज बैंक स्टेटमेंट? कैश बुक और पासबुक. पासबुक क्रेडिट टोटल मतलब क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट टोटल मतलब क्रेडिट बैलेंस. सो व्हाट इज दैट? नॉर्मल और ओवरड्राफ्ट? नॉर्मल. सो बैंक बैलेंस एज पर what? कैश बुक और पासबुक? पासबुक. बैंक बैलेंस एज पर पासबुक is 1000. So we are moving from passbook to cash book with a normal balance. Am I right? We are moving from passbook to cash book with a normal balance. Correct? अभी सुनो ध्यान से. So credit total मतलब credit balance as per bank statement. Credit balance as per passbook. Okay? Bank statement का मतलब क्या है? PB के CB. What is bank statement guys? PB, passbook. Okay? So we are moving from passbook to cash book. अभी आज के जो problems है ना, वो full fledged sums नहीं है. एक पर्टिकुलर पार्ट पे फोकस करते हैं, रिविजन के लिए काम आएंगे आपको. तो ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये पूरा चेक्स के ऊपर है. ऐसा एग्जाम में सेम टू सेम प्रॉब्लम नहीं आ सकता, इसके में से कोई भी एंट्री आ सकता है. तो पूरा प्रॉब्लम इज डेडिकेटेड टू चेक. फिर एक और प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, पूरा प्रॉब्लम कास्टिंग के ऊपर. फिर एक और है वो कास्टिंग और ट्रांसफर के ऊपर. ऐसा है. तो देखो ये वाला, इसमें नंबरिंग मिसिंग है. इसमें नंबर्स थोड़े ध्यान से, आपको स्टेटमेंट खत्म हो रहे हैं वहां पे नंबर दे दो. पहला वाला है चेक ऑफ 10,000 सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, out of which 8,000 were collected in January. We are doing it for which month? December. तो हमने कितने के चेक्स, अच्छा ये डिपॉजिट किए कि इश्यू किए? सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन का मतलब, तो आई थिंक CB went up by 10, right? What about PB? 8 Jan में कलेक्ट हुआ है ना, तो दिसंबर में कितना हुआ है? 2. So PB went up by 2. So plus or minus? Plus 8. Is that right? Normal है ना? Normal है, arrow goes upwards, you add. OD है तो subtract. ये plus 8 हो जाएगा. समझ आया? सेम मंथ में 2000 के क्लियर हुए. All of you got it? Check of 10,000 drawn on parties. What do you mean by drawn on parties? Is it deposited or issued? Issued.
ऑफ विच 8,000 वर प्रेजेंटेड इन डिसम्बर, मतलब ड्रॉन ऑन पार्टी मतलब पैसा आया कि गया? गया। 10,000 का गया कैश बुक से। व्हाट अबाउट पासबुक? 8 गया कि 2 गया? कैसे पता चला? दिसंबर का। अपने को दिसंबर का ही डेटा देखना है ना, जो दिसंबर में नहीं है वो रीजन ऑफ BRS है। तो दिसंबर में 8 का चेक पास हो चुका है, जैन में बाकी 2 का हुआ होगा, तो हमें जैन वाला ही लिखना है जो डिफरेंस है। इज इट क्लियर? पहले वाले में और इसमें फर्क समझा? पहले वाले में 8 जैन में हुआ था, इसमें 8 दिसंबर में हो गया। चेक्स ऑफ 5, 6, 700 आर डिपॉजिटेड, of which check of 500 was presented in Jan and check of 600 was dishonored. तो देखो 5, 6, 700 तीन चेक्स प्रेजेंट हुए, 5, 6, 700 तीन चेक्स प्रेजेंट हुए। 500 का क्या लिया है? was presented in January, तो ये CB में तो है, PB में नहीं। अच्छा 600 का डिसऑनर्ड, मतलब ये भी CB में है लेकिन PB में नहीं है। व्हाट अबाउट 700? दोनों में है। क्यों? ये लास्ट पार्ट पकड़ने का, याद है मैंने बोला था, अगर ये वाला चेक नहीं हुआ है तो बैलेंस हो गया, अगर ये वाला हो गया तो बैलेंस नहीं हुआ है, तो मैं इसको चौकड़ी मार देगा। तो मेरा प्रॉब्लम एरिया इज 500 एंड 600। डिपॉजिटेड है कि इश्यूड है? डिपॉजिटेड है तो CB गोज अप, PB फ्लैट, एरो मूव्स अपवर्ड्स और प्लस 1100। एम आई राइट? बराबर 6 मिला, प्लस 1100। हेलो, गॉट इट? Checks of 4,3,200 were issued, of which check of 200 was lost in transit. Okay, check of 200 was lost in transit, तो CB में तो होगा, issued है तो। PB में है नहीं, पहुंचा ही नहीं बैंक तक। 300 was presented in December, तो ये हो चुका है सेम मंथ में प्रेजेंट, तो दोनों बुक में आ गया। और 400 का क्या अज्यूम करोगे? ये क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? अगेन ऑपोजिट, ये वाला हो गया ना, तो ये वाला नहीं। लास्ट फ्रेज पढ़ने का, सिंपल मल्टीपल चेक्स, गॉट इट? तो 300 वाला हो गया तो 400 वाला नहीं हुआ है। इश्यूड है कि डिपॉजिटेड है? इश्यूड है, तो CB गोज डाउन बाय 600, PB फ्लैट माइनस 600। समझा? ये लो। Then check of 8,000 deposited in bank, out of which 1,000 was collected. वापस 8,000 के चेक्स डिपॉजिट हुए, out of which 1,000 was collected. 1,000 was collected मतलब ये दोनों बुक में आ गया। सॉरी, चेक ऑफ 800 was dishonored, तो ये CB में तो है लेकिन PB में नहीं है। And out of the remaining checks 2,200 were collected, तो 2,200 कलेक्ट हो गया, तो बचा कितना? 4,000। ये हुआ है कि नहीं हुआ? क्या अज्यूम करना? क्यों? लास्ट पार्ट वाला अगर हो गया है तो बैलेंस नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम एरिया क्या है अपना? आई थिंक 4,800। डिपॉजिटेड है कि इश्यूड है? डिपॉजिटेड है, तो CB गोज अप, PB remains flat, so plus 4,800. Is this clear? All of you got this? समझा? Then checks of 10,000 are drawn, out of which वापस मल्टीपल चेक्स है। 10,000 के चेक्स आपने ड्रॉ किए, कितने के ड्रॉ किए? 10,000 के। ड्रॉ करना मतलब क्या है? इश्यूड है कि डिपॉजिटेड? इश्यूड है। 2,000 was not presented due to technical reason, तो क्या ये बैंक तक पहुंचा? नहीं। And of the remaining 3,000 were presented in Jan. We are doing it for I think December. तो ये जैन में हुआ है, तो ये भी पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा। तो what will you assume about remaining 5? समझ में आ रहा है सबको? लास्ट पार्ट वाला अगर नहीं हुआ है तो बैलेंस हो गया। तो ये मेरा प्रॉब्लम एरिया नहीं है, मेरा प्रॉब्लम एरिया है 5,000। इश्यूड है कि डिपॉजिटेड है? देख लो, इश्यूड है तो CB गोज डाउन, PB फ्लैट।
By the way, which 5,000 is this? This one or 2 plus 3? 2 plus 3. 2 plus 3 जो सेम मंथ में क्लियर नहीं हो पाया, सेम मंथ में क्लियर नहीं हो पाया. बात समझ आई? Comfortable all of you? Sorry. Check of 1,800 and 900 are deposited, of which check of 1,000 is collected on 31st December. Check of 800 on 1st Jan and check of 900 on 2nd Jan. ये तो बहुत सिंपल है. 3 चेक्स है, उसमें से एक दिसंबर में हुआ है, 2 जैन में हुआ है. तो प्रॉब्लम वाले कौन से? जैन वाले, 8 और 900 वाले. एम आई राइट? डिपॉजिटेड है कि इश्यूड है? तो सीबी गोज अप बाय 1700, पीबी फ्लैट, एरो गोज अपवर्ड, सो प्लस 1700, 8 प्लस 9. जो सेम मंथ में हो गया है वो तो रीजन ऑफ बीआरएस हो ही नहीं सकता. क्यों हो सकता है? हो ही नहीं सकता. जो सेम मंथ क्लियर हो गया, दैट इज नॉट अ रीजन ऑफ बीआरएस एट ऑल. Checks of 6,000 are issued on 28th of December, out of which check of 500 is presented on 2nd Jan. Check of 4,000 was lost in transit and another check of 1,500 was dishonored. तो I think 500 वाला हुआ है 2nd Jan को, तो सेम मंथ में नहीं है. 4,000 वाला लॉस्ट है, ये भी नहीं है, और 1,500 वाला डिसऑनर्ड, ये भी नहीं है. तो पूरा का पूरा ही कैश बुक गोज डाउन एंड पासबुक रिमेन्स फ्लैट, एरो गोज डाउनवर्ड, सो माइनस 6,000. इज दैट राइट? माइनस 6,000. समझा कि नहीं? गुड. ऑल ऑफ यू गॉट इट? इज इट क्लियर? मिला? Okay? Sorted? Done? What's your final answer? कितना आ रहा है? तीन 3,000 आ रहे हैं. Anyone got this? Yes. Bank balance as per cash book it is 3,000. Please check. You got that? Bank balance as per cash book is 3,000 positive.